Hello students, today we are going to discuss the chapter, the third level. This is the first chapter from our book stars. Okay, second textbook prescribed by CBSE and it is written by Jack. Okay, so in this particular lecture we will be discussing the background. Okay, characters and some of the psychological elements that are discussed in this particular story. So first of all, let's see what is third level. Third level is third level is actually an imaginative or imaginary level conceived by the protagonist, the main character Charlie. Okay, it's actually the third level does not exist in the story. It is an outcome of the imagination of the character Charlie. Okay, so let's see why does this third level takes place. Okay, why does this third level takes birth? क्यों होता है ऐसा कि भाई थर्ड लेवल को क्रिएट करना पड़ता है चार्ली को? Actually in New York at Grand Central Station, there are two levels. Okay. Two levels means you can consider two floors. Okay, first level and then second. Okay, first floor, ground floor. Okay, first platform, second floor. And it is it is Grand Central Station where the train leave. Okay. अब क्या है कि जो character है, we are discussing the story of the line, the character Charlie. Okay. So when there are two levels, okay, first and second. So what is the idea behind conceiving this third level? ऐसा क्यों होता है that Charlie has to create this third level? Okay, देखिए what actually happens in the story is that Charlie is एक तरह से Charlie is disturbed. Okay, and Charlie is disturbed by the modern world. Charlie is disturbed by the modern world. Why is he disturbed? Because according to him, the modern world is full of insecurity. It is full of war. Okay, there are many kind of troubles. Okay, anxieties, worries, fears. Okay, or there is not a single individual who is free from these troubles. Means everyone has to experience insecurity, war, trouble, anxieties, worries, fears in his life, and everyone wants to escape from these troubles. Okay, means every now and then every individual or every person has to suffer because of these things. But Charlie thinks that this world has nothing but all these problems. Okay, उसको ऐसा लगता है कि इनके अलावा इस वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं. So what does he want? He wants to escape this world. क्या करना चाहता है? वो escape करना चाहता है इस वर्ल्ड से, because according to him this is full of troublesome things. Okay, it is full of those things which cause a lot of trouble. अब उससे escape करने के लिए उसके पास क्या तरीका है? उससे escape करने के लिए वो क्या करता है? देखिए, अब क्या कर सकता है कि nobody can escape from the world until his death. Okay, तो उसमें क्या करना है उसको? उससे के साथ क्या होता है कि he has a description in his mind of the place Galesburg. Okay, and it was of 1894 and it was narrated by his grandfather. Okay, देखिए
हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यूजुअली टेल द स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ, है ना, एंड दे विल से व्हेन वी वर चाइल्ड, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, और व्हेन वी वर we used to go to school, everything was very peaceful, every person was very happy, and they in a kind they boast of their time. ओके, वो क्या करता अपने टाइम के बारे में कि हमारे टाइम में सब कुछ पीसफुल था, इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, इस तरह की कोई लड़ाई वो नहीं थे, स्ट्रगल्स नहीं थे, इस तरह के फियर्स नहीं थे, एवरी इंडिविजुअल कोऑपरेटेड ईच अदर। तो ये सब चीज़ें वो अपने टाइम की बताते हैं। एंड सेम थिंग वाज देयर विद चार्ली, कि उसके जो ग्रैंडफादर है, ही यूज्ड टू टेल हिम दैट दे लिव्ड इन गेल्सबर्ग, एंड दैट इन गेल्सबर्ग एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल। Okay, people live together, they used to sit their houses in the evening, है ना, और इस तरह के जो है used to play piano, dancing, singing, और एक बहुत ही जो है ना एक peaceful और बहुत ही friendly environment वहाँ पर होता है। तो चार्ली को क्या लगता है? चार्ली see this world of 1894 as an alternate to this world, this modern world, which is full of all kind of। उसको क्या लगता है कि अगर आज के वर्ल्ड में जो कि पूरी तरह से ट्रबल से, फियर से, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, उसका अगर कोई ऑल्टरनेट हो सकता है तो वो क्या हो सकता है? 1894 का गेल्सबर्ग का जो है। ओके, दैट्स व्हाट ही थिंक्स। मतलब उसको ये लगता है कि आज की जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स है या सारी मेरी वरीज है, मेरे सारे फियर्स हैं, उनकी अगर कोई रेमेडी है तो दैट इज द वर्ल्ड ऑफ 1894। That is what he thinks. Now, and he wants to go there. Surprisingly, he wants to go there. He wants to go. He wants to travel to the He wants to travel to the Galesburg of 1894. वो 1894 के गेल्सबर्ग में जाना चाहता। This is not possible. We are living in 2020, and if say my grandfather used to live very happily in 1960s, and I want to travel in that particular day, that is not possible. But what happens in the chapter going places I told you, okay, जब हम क्या होता है कि जब हमारा हैप्पीनेस का एक पर्टिकुलर लेवल बन जाता है, मीन्स हमारी जो खुशी होती है वो एक पर्टिकुलर चीज़ में हो जाती है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है? सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है, एंड ही इज अनेबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स। वो चीज़ और वो चीज़ कुछ उसमें ले ही नहीं सकता। ओके, तो सेम थिंग हैपेंस विद चार्ली। अब चार्ली के साथ क्या होता है? चार्ली के साथ क्या होता है कि ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस। हमेशा सोचता रहता है कि किसी तरह से मुझे गेल्सबर्ग जाने का टाइम मिल जाए, मौका मिल जाए, है ना, क्या क्या नहीं ये अगर मैं इस वर्ल्ड से एस्केप करके उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में जा सकूं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू मी, दैट वुड बी द सॉल्यूशन, रेमेडी, क्योर ऑफ ऑल माय प्रॉब्लम्स। तो जब हर तरह से वो सोचता है, और देखिए क्या होता है कि द टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, द टू लेवल्स, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो लेवल्स हैं, वहां से उसको कोई ट्रेन नहीं मिल सकती। कहाँ की? गेल्सबर्ग की, क्योंकि वो जाना चाहता है गेल्सबर्ग, और हो सकता है वहां से कोई ट्रेन जाती हो गेल्सबर्ग में ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम गेल्सबर्ग में तो जाती होगी, बट ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी जो 1894 के गेल्सबर्ग में लेकर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पास्ट में जो है उसके मींस 50-60 इयर्स बैक के टाइम में ले जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं। ओके, तो जब ये दो लेवल उसको नहीं पहुंचा सकते, और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट रीचिंग देयर, क्योंकि उसने क्या कर लिया, उसके थिंकिंग पावर को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया है। अब वो सोच ही वही रहा है कि मुझे किसी तरह से वहां पहुंचना। ओके, दैट इज व्हाई क्या होता है, his imaginary or his subconscious mind becomes overreactive। ओके, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और उसके ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या होता है, वो कॉन्शियस माइंड को ओवरलैप कर देता है ना। अब उसको क्या लगता है कि दो लेवल्स जो है वो तो मुझे वहां पहुंचा नहीं सकते, तो वो अपने सबकॉन्शियस या इमेजिनरी माइंड से ही क्रिएट्स अ थर्ड लेवल। ओके, तो क्या कर लेता है, एक थर्ड लेवल क्रिएट करता है जो उसको क्या कर सके, वहां पर पहुंचा सके। कहां पर? गेल्सबर्ग। मतलब उसका इमेजिनरी माइंड ऐसे देखने लग जाता है कि एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है जहां पर लोग पहुंचे ही नहीं आज तक, और वो थर्ड लेवल क्या करता है, वहां पर थर्ड लेवल के लिए यू कैन इजीली हैव अ ट्रेन टू रीच गेल्सबर्ग। ओके, सो
to as an alternate to this modern world, he thinks that world of Galesburg could be an ideal world, or to reach the past of Galesburg, because the two levels cannot provide him a suitable train, he conceives a third level that offers him a train to reach there. ओके, और देखिए उसमें जब वो डिस्क्राइब करता है तो वो बताता है कि हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो लगातार ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत सारे स्टेयर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, डोर्स हैं, इंडोर्स हैं, एग्जिट्स हैं, और उसको कभी समझ नहीं पाता है। और एक बार जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो पहुंचते उसको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि वो वापस सेकंड लेवल पे आ गया हो। तो मिस he was actually not on the third level, or third level do not actually exist, does not actually exist. It is only the creation of his mind. He might be on first level or second level, but he thought that to be the third level because of his imaginary or subconscious. समझ में आ रही है कि भाई उसको ऐसा लगता है उसको किसी भी हालत में गेल्सबर्ग पहुंचना है, और गेल्सबर्ग ऑफ 1894 पहुंचना है, और क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उसके पास कोई सूटेबल ट्रेन नहीं है, उन टू लेवल से उसको ट्रेन नहीं मिल सकती है, तो वो तीसरा लेवल क्रिएट करता है जहां से उसको पहुंचा जाए, क्योंकि उसके लिए हैप्पीनेस का एक ही डोर है, हैप्पीनेस की एक ही जगह है, एक हैप्पी लाइफ के लिए एक ही प्लेस है, एंड दैट इज गेल्सबर्ग ऑफ 1894। तो वो वहां पहुंचना चाहता है, और वो पहुंचना चाहता है। देखिए होता है ना, जब हम सोचते रहते हैं यार ये हो जाए, तो हम उस चीज़ को जीना शुरू कर देते हैं, है ना। और इसी तरह से क्योंकि वो बार बार वो सोचता रहता है कि मुझे 1894 में पहुंचना है, तो वो उसको ये लगता है क्योंकि ये टू लेवल्स नहीं है, तो वो हमेशा ये भी सोचता होगा कि भाई काश कोई ऐसा तीसरा लेवल भी बनाया जाए जो वहाँ से वहाँ के लिए ट्रेन अवेलेबल करा सके, और उस चीज़ को सोचते सोचते वो उस चीज़ को जीना शुरू कर देता है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज व्हाई ही रीचेस दैट। ओके, और थर्ड लेवल पे जाते ही पहला काम क्या करता है, ही ट्राइज टू परचेज 2 tickets for Galesburg, one for himself and one for his, but somehow he could not purchase those tickets. Okay, so that is the outline of the story. Now let's discuss about the characters. Okay, there are no major characters except Charlie. As first is, as I told you, Charlie, who is the protagonist of the story, and one more character is there, Sam. Sam is a friend to Charlie. He is a psychiatrist. Okay, और उसका भी जैसे इसको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चार्ली को प्रॉब्लम्स होती है, भाई मुझे थर्ड लेवल जो है एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने थर्ड लेवल देखा है, और उससे पहले भी जो है मैं इन चीज़ों को वो उससे शेयर करता है, तो वो कहता है कि यू आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और आप इससे एस्केप करना चाहते हैं, एंड द थर्ड लेवल इज नथिंग बट योर वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वॉकिंग ड्रीम wish fulfillment. Okay, means in a kind you are in a dream world to fulfill your wish, and what was his wish? To reach the third level. Okay, that is why he experienced that third level. Okay, क्योंकि उसके ड्रीम वर्ल्ड में एक ही चीज़ थी जो उसको वहाँ पर जो है अच्छी लगती थी, कि भाई उसको मॉडर्न लाइफ से ऑल्टरनेट लगती थी, या मॉडर्न लाइफ का प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लगता था, दैट वाज गेल्सबर्ग। तो उसको वहाँ पहुँचने के लिए ही क्रिएटेड दैट थर्ड लेवल। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टोरी, आउटलाइन ऑफ द स्टोरी. Story is, as I told you, is about Charlie, who is a simple person who goes to his office, returns in the evening. He has a wife, okay, but just as I told you, he is unhappy. Okay, he is unhappy because of the modern scenario, modern world. उसको बड़ा ट्रबल है वो आज की दुनिया से, और उसके उसमें अपने आप को जीने उसको he is facing some kind of difficulty. क्यों? क्योंकि इसमें सारी ट्रबल्स है ना, आदमी को हर टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटीज, वरीज, फियर्स, इनसिक्योरिटीज ये लगी रहती है, और उसको वो चाहता है कि मैं वहाँ पर गेल्सबर्ग पहुँचूँ। ओके, तो जनरली वो ग्रैंड सेंट्रल से आता है, और वहाँ से जैसे उसका ऑफिस है, और वहाँ से बाई बस जो है वो अपने घर पहुँचता है, बट वन डे ही वॉज लेट फॉर द ही वर्क लेट इन हिज ऑफिस, तो वो घर जल्दी पहुँचना चाहता था,
तो उसने क्या किया, जैसे अक्रॉस ये दिस माइट बी ग्रैंड सेंट्रल एंड इज स्टैंडिंग देयर, ओके, हिज ऑफिस देयर, हिज हाउस इज देयर। तो अगर वो बस लेता है तो उसको यहाँ पर ऐसे घूम के आना पड़ेगा, और उसने ही टुक अ सबवे फ्रॉम हियर, ओके। तो वहाँ से उसने सबवे लिया और वो वहाँ पहुँचना चाहता है, इट वाज लेट इन द इवनिंग। तो उसमें क्या हुआ कि बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और मेट्रो सिटीज़ में जो इस तरह स्टेशन होते हैं, मेट्रो सिटी स्टेशन होते हैं, उनमें बड़ा जो है ना उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, उनका जो आर्किटेक्चर बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि भाई आदमी को इजीली समझ नहीं आता है। तो दैट वाज द ट्रबल विद चार्ली एज वेल, कि उसको समझ में ही नहीं आता था कि कभी कौन सा डोरवे, कौन सा कॉरिडोर किधर जा रहा है, कौन सी स्टेयर्स किधर जाती हैं, और ही ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड, ओके। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे क्या हुआ कि वो एक नए ही जो है उसमें, उसका पहले भी बताता है कभी एक टनल में चला गया, कभी जो स्टेयर से दूसरी बिल्डिंग में वो पहुंच गया था, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए वो मैटर ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ कि वो एक नई स्टेयर से चढ़ा एंड ही रीच टू अ न्यू लेवल, ओके, एंड दैट ही नेम्ड एज द थर्ड लेवल। और वहां पर ऐसा नहीं था, दैट वाज नॉट द थर्ड लेवल, क्योंकि वो टाइम उसमें उसने देखा कि जो वहाँ पर जाकर देखा तो उसने देखा कि वहाँ का आउटलुक बिल्कुल अलग था। लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे, ब्रास के स्पिटून्स थे वहाँ पर, ओके, जो विंडोज थे और जो गेट्स थे वो वुड के बने हुए थे, प्रिंट ओल्ड स्टाइल थी, ओल्ड स्टाइल फैशन लोग थे। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि कोई ऐसा भी लेवल एग्जिस्ट करे जो आपको इतने टाइम पीछे लेकर जाए। सो दैट वाज द क्रिएशन ऑफ हिज माइंड, ओके। तो वो वहाँ जाता है और उसको एक बड़ा अजीब सा ही और बड़ा न्यू जो है सिनारियो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस करता है, और वहाँ पर वो कोशिश करता है किस चीज़ के लिए, वहाँ पर पहुँचते ही ही ट्राइज टू परचेज 2 टिकट्स फॉर गेम्स, बट लेकिन जो करेंसी नोट है, क्योंकि आप देखिए माइंड में आदमी की ये भी रहता था कि वहाँ पर उस तरह के जो है वो करेंसी चलती थी, आज के टाइम पे इस तरह की करेंसी है, इस तरह के करेंसी नोट चल रहे हैं। तो उसको ये लगता था कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये वो जो उसने टिकट परचेज करने की कोशिश की, तो वो जो क्योंकि करेंसी जो आपस में मैच नहीं हुई, और जो वहाँ का जो कैशियर था वो उसने उसको बड़े एक तरह से बड़े हार्ड लुक उसकी तरफ दिए। तो ही हैड टू run from there because he was afraid of caught by the police. So and he came back to the familiar world. तो ये उसके लिए जो एक्सपीरियंस था फॉर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का, रीचिंग थर्ड लेवल। अब उसको रीचिंग थर्ड लेवल पर पहुंचते उसको एक जो है ना कंफर्ट मिलता है कि थर्ड लेवल पे गेल्सबर्ग के लिए टिकट आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद भी ही ट्राइज टू रीच देयर फॉर मैनी टाइम्स, ओके, काफी बार अलग अलग स्टेयर्स को ट्राई करता है, अपनी वाइफ को भी अपने इस एडवेंचर में इन्वॉल्व करता है वो। देखिए स्टोरी वही है, स्टोरी कौन सी है, स्टोरी वही है जो हमने गोइंग प्लेसेस में पढ़ा है ना, कि भाई ये लोग दे आर नॉट टेलिंग ए लाई कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वो बता रहा है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। सोफी डैनी कैसे से मिल चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज टेलिंग ए लाई, वो उनके इमेजिनरी माइंड की क्रिएशन, और वो उस चीज को जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही वो एक्सपीरियंस किया। अब चार्ली, क्योंकि उसको उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई नहीं दिस इज नॉट रियल, लेकिन फिर भी उस आइडिया को छोड़ नहीं सकता, बार बार ट्राई करता है, पैसे बैंक से सारा पैसा अपना निकलवाता है, उसको ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है कि भाई मैं फिर से थर्ड लेवल पे जाऊंगा। और सेम वाज द केस विद सोफी। सोफी भी ऐसा ही सोचती है, पहले भी ली थी, उस टाइम पे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई तो नेक्स्ट टाइम पे लूँ। तो ये उनका जो है इमेजिनरी वर्ल्ड, ओके। तो उसने वापस फैमिलियर वर्ल्ड में आया, अपनी वाइफ को अपना सारा एक्सपीरियंस बताया, अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम के पास गया, तो उसने तो उसको बताया दिस इज ओनली योर वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी जो है वो अपने क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक स्टैम्प कलेक्टिंग का जो है वो स्टैम्प जो पोस्ट और स्टैम्प होती है उसको कलेक्शन का जो है उसने एक वो था, उसको हॉबीज थी, तो वो स्टार्ट किया था। तो जब वो उनमें देखता है तो उसको फिर से वही जो है चीज़ें उसको फिर से आती हैं, याद आती हैं। तो कैसे अपने आप को एक तरह से वो उन चीज़ों से दूर करता है, क्या वो सच में थर्ड लेवल पे पहुंच पाता है। और इस स्टोरी में आखिर में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि जहाँ पर उसका फ्रेंड सैम वो भी थर्ड लेवल पर पहुंचा हुआ बताया जाता है, बट दैट विल बी डिस्कस्ड विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। जब हम स्टोरी को टेक्सुअली पूरा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो सैम कैसे थर्ड लेवल पर पहुंचा। ओके, सो दिस इज स्टोरी आउटलाइन, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, एंड वी हैव रेड अबाउट द कैरेक्टर्स एज वेल। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स जो है इस स्टोरी में क्या है, एज आई टोल्ड यू दिस इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ योर साइकोलॉजी। आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए आदमी का जो है ना जो फीलिंग्स है, आदमी की जो एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो वैसी ही बनती है जैसा कि वो उसमें सोचता रहता है, जैसा कि वो अपने माइंड में क्रिएशंस बनाता है।
तो क्योंकि वो उस चीज़ को ज़्यादा आपने उसने लिविंग उसमें इन्वॉल्व कर लिया है उसने चार्ली ने, तो वो उसको ऐसा ही लगता है कि भाई रीचिंग गेट्सबर्ग इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द वरीज ऑफ मॉडर्न। तो वो चीज़ें वो लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। ओके, so that's it from this lecture. Okay, in the next lecture we will be dealing with the story of the chapter. Thank you very much.